सत श्री अकाल जी। मैं हरकिरत सिंह बाल सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ 23 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਲਸਫਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੂੰ ਗਦਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਬੋਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਦੱਸੋ ਜੀ। थैंक यू बल साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहला तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करदा कि जिन्होंने मैनू बुलाया, ये मौका दिता। तो नेता जी कोई पहचान के मोहताज नहीं है। नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ जी। मूल रूप से नेताजी बंगाली परिवार से बिलोंग करते थे। नेताजी का जन्म हाई क्लास फैमिली में, अपर क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ। उनके फादर साहब एक बहुत बड़े बंगाल के फेमस वकील थे और उनके फादर साहब का रुतबा बहुत बड़ा रुतबा था और जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी काफ़ी उनसे खौफ खाती थी जी। जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़े हुए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी डर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हृदय में बैठ गया। मैं उनके लाइफ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सात भाई और 6 बहनें हुआ करते थे। उनके भाई सतीश और शरद के साथ उनका काफ़ी गहरा नाता था। उनकी माताजी प्रतिभा दत्त बोस, उनकी माताजी का नाम हुआ करता था और उनके फादर साहब का नाम जानकी नाथ बोस हुआ करता था। तो बचपन से ही उनके परिवार में उन्हें सिखाया गया निडरता, निर्भीकता, उत्साहित होना, ये उनके करैक्टर की पहचान थी। और शायद यही कारण थे कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़े हुए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मन में उनका डर भी बैठ गया। जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो यानी कि उन्होंने क्या किया कि भारत को आज़ाद कराने के लिए सक्रिय कदम उठाने शुरू किए। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा बैकग्राउंड में कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1919 में इंग्लैंड में गए और 1920 में जाकर वो वहाँ से ICSC की परीक्षा उन्होंने पास की और उसके पश्चात वो ICS अधिकारी के तौर पर यानी कि DM के तौर पर नॉमिनेट हुए। परंतु उनके मन में भारत के प्रति और भारत की जनता के प्रति अगाध श्रद्धा थी और वो जल्द से जल्द भारत को आज़ाद कराना चाहते थे अंग्रेजों के चुंगल से। और इसी जज्बे को सलाम करते हुए उन्होंने अपनी ICSC की जो उन्होंने परीक्षा पास की थी चौथे रैंक के तौर पर, उस नौकरी से वो DM के पद से त्यागपत्र भी दे देते हैं। और 1920 में वो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ते हैं और गांधी जी के साथ वो मिलकर आगे काम करने की हिमायत रखते हैं।
तो ये उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रही है और इसी को हम आगे कड़ी में बताएंगे। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂधी जी ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ महात्मा गांधी ਨਾਲ। देखिए बल साहब, जैसे मैंने आपको बताया जी कि अपनी नौकरी से त्याग पत्र देने के पश्चात असहयोग आंदोलन में 1920 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कूद पड़े। गांधी जी के साथ इनके वैचारिक मतभेद थे, व्यक्तिगत मतभेद गांधी जी के साथ नेताजी के नहीं थे और ना ही गांधी जी के साथ नेताजी के थे और ना नेताजी के गांधी जी के साथ। दोनों ही एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी के साथ एक बार बात करते हुए उन्होंने बताया कि सुभाष तुम मेरे एक बिगड़ैल बेटे हो, मेरा प्यार फूल की भांति कोमल और मेरा प्यार फूल की भांति ना पत्थर की भांति कठोर भी है जी। तो वो गांधी जी कहा करते थे कि अगर आप कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं तो अहिंसात्मक तरीके से आ जाइए और पूरी की पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। परंतु दोनों के बीच में अंतर यह था, वैचारिक अंतर। गांधी जी अहिंसात्मक तरीके से भारत को आज़ाद कराने की बात करते थे। इवन के अहिंसात्मक तरीकों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी विश्वास करते थे। परंतु उसके बावजूद भी क्या हुआ कि जितनी मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि बड़ी निडरता, निर्भीकता उनके करैक्टर की पहचान मानी जाती है और वो जल्द से जल्द भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजों को जल्द से जल्द भारत से निकाला जाए और भारत एक सुखद सांस ले सके और स्वतंत्र हो सके। तो ये ऐसी कड़ियाँ रही हैं जिसको लेकर गांधी जी के बीच में और नेताजी के बीच में कुछ अनबन रही है। परंतु उसके बावजूद भी अगर हम त्रिपुरी अधिवेशन की बात करते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन में क्या होता है कि दोनों के बीच में जो विवाद है वो उभर कर सामने भी आ जाता है जी। गांधी जी ने अपने एक सहयोगी पट्टाभी सीतारमैया को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट इलेक्शन लड़वाते हैं और इस इलेक्शन के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1377 की अपेक्षा 1580 वोटों यानी कि 208 वोटों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप के लिए चुने जाते हैं और 1938 और 39 में दो बार वो चुने जाते हैं, 1938 और 39 में। परंतु उस समय की कांग्रेस ये कहती है कि नेताजी जी चुने जाने के कारण कुछ हल नहीं हुआ, समस्याएं हल नहीं हुई, समस्या पर वहीं पर तस्कीन की जो है, अगर उनका हल निकालना है तो उनका अहिंसात्मक तरीके से हल निकाला जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर वो थोड़े अग्रेसिव नेचर के हुआ करते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, परंतु इसका मीनिंग ये नहीं निकाला जा सकता कि वो सेंसिबल मैनर में यानी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। हर तरीके से नेताजी ऐसी पर्सनैलिटी के तौर पर तैयार हुए। उनके फादर साहब उनको बचपन में समझाया करते थे कि बेटा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पर्सनैलिटी भी ऊपर कर सामने आएगी। एक मैं किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा, थोड़ा इतिहास में जाना चाहूँगा नेताजी के। इवन कि नेताजी कोई किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज पूरे संसार में, भारतवर्ष में नेताजी को बड़ा मान सम्मान और रिस्पेक्ट के साथ याद किया जाता है। परंतु आज उनका दिन है कि जन्म दिन के मौके की हम बात कर रहे हैं, तो वो जब बचपन था उनका, बचपन में कटक नामक एक उड़ीसा में जगह है, कटक में वो पढ़ा करते थे और कटक में पढ़ते पढ़ते एक वहाँ के कमिश्नर होते थे, उनका बेटा भी उनके साथ पढ़ा करते थे कटक में। तो वहाँ पर क्या कि वो काफ़ी नेताजी के बारे में अनाप शनाप गलत बातें किया करता था, बच्चों को गलत पढ़ाता था कि ये सुभाष जो है वो एक जस्ट लूजर। परंतु नेताजी ने साफ कर दिया कि इंडियन लोग लूजर नहीं है, इंडियन लोग साहसी निर्भीक है और मैं इस चीज़ को साबित करके रहूँगा। और उन्होंने किया। जब उनको एक बार वो मीटिंग हुई वहाँ पर कटक में, कोई क्रांतिकारियों की मीटिंग हुई, क्रांतिकारियों की मीटिंग में वहाँ पर वो गए और उस मीटिंग में वो एसपी ने नेताजी जी को
सबक सिखाने की बात सोची तो नेताजी ने उनकी आंखों में नीचे से मिट्टी उठाया और उनकी आंखों में डाल दिया। और ये निर्भीकता का जन्म, यानी कि उनके कैरेक्टर की एक पहचान मानी जाती है। वो डरते नहीं थे किसी से, और झूठ नाम की चीज़ उनको छू नहीं पाती थी। झूठ नाम की चीज़ क्यों नहीं छू पाती थी? क्योंकि उनकी माँ ने, उनके फादर साहब ने ऐसा तैयार किया था कि आप संसार में ऐसे व्यक्ति के तौर पर जाने जाए कि दुनिया आपको देखे। और जब वो कभी झूठ बोल दिया करते थे तो उनको सज़ा भी दिया करते थे। यानी कि हमारे जो रिस्पेक्टेड फादर साहब हैं उनके, यानी कि जानकीनाथ बोस साहब, और वो सज़ा कैसे दिया करते थे कि जैसे आपको किताब पढ़ के दिखानी है। जैसे उसने गलती कोई, उनको बचपन में थोड़ा हल्का सा उनके बचपन में जाना चाहूँगा कि अगर आज हम बचपन में उनके नहीं गए तो फिर कभी जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन के मौके पर ऐसी बातें होनी भी चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा, उनको घर में सूबी बाबा के नाम से जाना जाता था। सुभाष चंद्र तो इंडियन पॉलिटिक्स में जाना जाता, संसार के तौर पर जाना जाता, परंतु सूबी बाबा के नाम से उन्हें जाना जाता था। और खान साहब, उनके एक बाबा हुआ करते, खान साहब यानी कि जो उनके घर में नौकर हुआ करते थे, वो काफ़ी रिस्पेक्ट सूबी बाबा किया करते, और सूबी बाबा भी उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। और ये बात यह भी साबित करती है कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर भी जाने जाते हैं। और ये जो है, जैसे कि वो उनको स्कूल में लेकर जाना और उनके साथ फिर आना, और ये जब वहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम में वो खान साहब भी इसको सूबी बाबा को वहाँ से लेकर आए थे। और उसके अलावा मैं आपको और थोड़ा सा बताऊँगा कि जब वो कलकत्ता में हायर क्लास के लिए गए, वहाँ का जो फिलोसफी के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, जो सूबी बाबा यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को काफ़ी अग्रेसिवनेस के साथ उनके साथ बात किया करते थे, यानी कि वे ऑफ टॉकिंग उनका सही नहीं हुआ करता था। वो नहीं है कि इंडियन लोगों के बारे में गलत कमेंट करना, यानी कि गलत तरीके से उनको ट्रीट करना, भेदभाव, हाँ, भेदभाव करना, ये नेताजी ने कभी सीखा ही नहीं कि ये नहीं चलेगा इंडिया में। और इंडियन लोगों में एफिशिएंसी नाम की कमी नहीं है। और वो नेताजी ने यानी कि आईसीएससी की परीक्षा में 4था रैंक प्राप्त करके अंग्रेजों को साबित भी कर दिया। और जब हम बाद में और थोड़ा इतिहास में जाते हैं तो एक स्कॉलरशिप नेताजी को मिलती है। उस स्कॉलरशिप से जबरदस्ती नेताजी का नाम काट दिया जाता है। उस रिटन परीक्षा में वो अव्वल नंबर पर आते हैं, और अव्वल नंबर पर आने के पश्चात जब ये घर में ये बात जाता है, मैसेज जाती है, तो घर के सभी लोग काफ़ी मायूस होते हैं। परंतु फिर रिटन ओरल हुआ। उनके जो फादर साहब थे जानकी दत्त जी, उनकी माता जी, उनके दोनों भाई सतीश, शरद और भी उनके ताऊ जी वहाँ पर गए और प्रिंसिपल साहब के साथ बात किया। और प्रिंसिपल साहब को कहा भी अगर ये आपको लगता है कि हमारे बच्चा इस परीक्षा में असफल हुआ तो इनका ओरल इंटरव्यू आप लीजिए। ओरल इंटरव्यू में जब उन्होंने साबित कर दिया तो उस परीक्षा में वो पास आते हैं। और प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि आप ये होनर यानी कि प्राइड गो टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। परंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस प्राइज को लेने से मना कर देते हैं कि जिस चीज़ के बीच में कपट होगा, जिस चीज़ के बीच में झूठापन होगा, उस चीज़ को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कोई भी भारतीय उसको स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसी प्रतिभा के धनी यानी कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे। जी, कहा जा सकता कि सुभाष चंद्र बोस जी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉੱਘਾ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ जी ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ संबंध रहे ने नेता सुभाष चंद्र बोस जी ਦੇ। देखिए बल साहब, आपने एक बड़ा वाजिब क्वेश्चन पुटअप किया है और इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी देना चाहूँगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अपना ये जवाहरलाल नेहरू जी दोनों ही समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। जी, नेहरू उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रसिया की यात्रा कर चुके हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कई कंट्री में घूम चुके हैं। और घूमते घूमते जब उनको लगा कि वो रसिया गए, रसिया में उन्होंने यानी कि 1917 की क्रांति को देखा। और ये क्रांति देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी का मन पलट गया। जो भारत की राष्ट्रीय लीडरशिप है वो समझने लगी कि जिस प्रकार का समाजवाद, साम्यवाद यानी कि रसिया के बीच में है, अगर उसी प्रकार का साम्यवाद इंडिया के बीच में आ जाए तो भारत में लोकतंत्र की और प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूती प्रदान की जा सकती है। और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ
लड़ाई इजी की जा सकती है। जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस माना करते थे कि दुश्मन का दुश्मन अपना मित्र होता है। जी। और उस समय रसिया की और इंग्लैंड की नहीं बनती थी, तो उन्होंने ये भी एक कारण माना है कि हम वहाँ पर जाकर ऐसे किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं, अफगानिस्तान, काबुल के रास्ते, रसिया, जापान, सिंगापुर, मलाया, इटली, जर्मनी आदि देशों के साथ उन्होंने टाई अप किया। हिटलर के साथ उन्होंने मुलाकात की, हिटलर के उन्होंने सहयोग देने का पूरा वादा किया और 55,000 सैनिकों के साथ यानी कि INA, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना भी कर दी, जो वहां पर युद्धबंदी के तौर पर उनको पकड़ा गया था। और जो आपने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ बात करने की कोशिश की है कि उनके साथ उनके संबंध कैसे रहे, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी कि छोटी पॉलिटिक्स को लेकर कभी नहीं चलते थे ना। वो कभी भी ये साबित करना चाहते थे कि उन्हें भारत की राजनीति में बड़ा तगड़ा स्थान मिले। और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भारत को किसी भी तरीके से यानी कि हमने स्वतंत्र कराना है। और गांधी जी को कहा करते थे कि अंग्रेजों को 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं, मैं और जो जवाहरलाल नेहरू जी से वो कभी भी खुले तौर पर नेताजी के साथ यानी कि वो पंगा लेने के मूड में नहीं थे और ना ही उन्होंने उनका विरोध भी नहीं किया, परंतु समर्थन भी नहीं किया। और ये चीज़ें दिखाती हैं, अगर समर्थन होता प्रॉपर वे में तो मेरे ख्याल से जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस बहुत आगे लेकर इंडिया को और जा सकते थे और भारत को जल्द से जल्द आज़ाद करा सकते थे। परंतु कहीं ना कहीं आंशिक तौर पर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी रहा है, जिसके कारण की सेम विचारधारा होने के बावजूद भी दोनों सेम लक्ष्य के ऊपर आगे नहीं बढ़ पाए हैं। डॉक्टर साहब, राजनीति ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਲਗਭਗ 11 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਜੀ? ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਜਿਹੜੀ फौज ਆ ਉਹਦੇ बारे ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ दर्शक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸो जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैंने थोड़ा डाटा भी रात तैयार किया था, इवन कि आपने शॉर्ट नोट्स में मेरे को बुलाया है, परंतु फिर भी मैंने आपका न्योता स्वीकार किया है। तो मैंने अभी जैसे रसिया की बात की, रसिया में वो उससे काफ़ी प्रभावित थे रशियन रेवोल्यूशन से, तो वहाँ पर क्या समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की जो भावना थी वो उस चीज़ को लेकर आना चाहते थे। और यही जवाहरलाल नेहरू जी भी करना चाहते थे जी। परंतु वो क्या कि वो अग्रेसिवनेस के कारण यानी कि ये लड़का जो है, इस लड़के का खौफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के मन में इतना फैला हुआ था, वो एक यानी कि जस्ट लड़के के तौर पर ट्रीट करती थी, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। इनके भारतीय जनमानस के पटल पर नेताजी का बहुत बड़ा प्रभाव है आज भी और उस समय भी था और रहेगा भी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर। तो मैंने जैसे आपको बताया कि रूस की क्रांति के कारण रूस के ऊपर 1929 की आर्थिक मंदी का प्रभाव भी नहीं पड़ा। वो क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो समाजवाद की जड़ें वहाँ पर मजबूत थी। वहाँ पर जैसे लेबर क्लास है, श्रमिक वर्ग है या किसान वर्ग है, इस वर्ग को प्रायोरिटी दी जाती थी। और भारत भी तो मजदूरों का ही देश है, उस समय भी आज भी यहाँ पर किसानों का देश है, श्रमिकों का देश है। अगर इस देश में श्रमिकों की समस्या को नहीं समझा जाएगा, फिर कहाँ पर समझा जाएगा? ये चीज़ श्रमिक वर्ग को लेकर, और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे और इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहा करते थे कि अगर भारत की ताकत को देखना है तो मजदूरों के बीच में देखना पड़ेगा, श्रमिकों के बीच में देखना पड़ेगा, किसानों के बीच में देखना पड़ेगा। और वो कभी भी समझौता नहीं करते थे। कैसे समझौता नहीं करते थे कि जैसे आप लोग अगर ये मानते हैं कि अगर मजदूरों की समस्या को, किसानों की समस्या को, श्रमिकों की समस्या को नहीं समझोगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करते, ना ही जवाहरलाल नेहरू जी को फॉलो करते हो। तो आज उनकी समस्याओं को समझकर उनको फोकस कीजिए, तभी जाकर हम उनके असली वारिस बन सकते हैं और उनको इतिहास में सही स्थान दिलवा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, समा बहुत घੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਉਹਦੇ पर ਕੀ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ देना चाहोगे? देखिए बल साहब, संदेश तो ये है कि मैं तो बड़ा लिमिटेड वे में ही आपको बताऊंगा कि अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रिस्पेक्ट करते हैं, उनको रिगार्ड करते हैं, तो उनके बताए रास्ते पर आप चले। जो रास्ता उन्होंने हमारे को दिखाया है समाजवाद का, स्वतंत्रता का, प्रजातंत्र का,
सावधानी का रास्ता जो हमारे को दिखा कर गए हैं, निडरता का रास्ता जो हमारे को दिखा कर गए हैं, जो निर्भीकता का रास्ता हमारे को दिखा कर गए हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने पथ पर चलते जाएं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी चले, और वो रास्ते अपने आप ही तलाश लेंगे हम, और उन्होंने अपने रास्ते हमेशा तलाशे हैं। किसानों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हिमायती थे जी, और वो चले भी, और जहां तक उनसे हुआ उन्होंने उन चीज़ों को क्लियर करने की भी कोशिश की। मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जैसे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उन्हें कीर्ति 1923 में कीर्ति किसान सभा जी, कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना पंजाब में की गई। भगत सिंह जी ने नौजवान सभा की स्थापना की 1926 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। और इन सब का प्रभाव नेताजी के करैक्टर पर हमें देखने को मिलता है जी। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के इस प्रभाव से भी काफ़ी प्रभावित थे जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा का गठन किया गया जी। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि 1377 से 1580 वोटों से वो जीतते हैं, यानी कि 203 वोटों से जी। अरे ये जो है ये अंतर बताता है कि उनकी भारतीय जनमानस में और कांग्रेस पर कितनी पकड़ थी। इस पकड़ के बावजूद भी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस में वो स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, जो गांधी जी को मिल गया, जो जवाहरलाल नेहरू जी को मिल गया। इवन के मैं गांधी जी को भारत के बड़े सम्मानित नेता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के बड़े सम्मानित नेता, मैं उनका भी काफ़ी रिगार्ड करता हूँ। और जब कभी भी आप मेरे को मौका देंगे जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में या गांधी जी के विषय में, उनके विषय में भी हम बात करेंगे तो वो चीज़ वो नेताजी नहीं बन पाए जी। और जो नेताजी थे वो यानी कि होल टाइप की पॉलिटिक्स से, यानी कि अपने आत्मविश्वास से, अपनी निर्भीकता से, अपनी सोचन शक्ति से, थिंकिंग से, फिलोसफी से वो भारत को आगे बढ़ाने की हिमायत करते थे। और मेरा आपको शॉर्ट में यही सजेशन है सभी को, जहाँ पर भी ये चैनल जा रहा है, कि आप लोग नेताजी के जो आदर्श हमारे को दिखाए गए हैं, जो उनका मार्ग है, उस मार्ग पर हम चलें और तभी जाकर नेताजी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनको हम फॉलो कर पाएंगे और भारत आगे बढ़ पाएगा। यही मेरा सभी भाइयों को जहाँ पर भी ये चैनल है यही संदेश है। और इसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उनको उनके जीवन के विषय में ये अपना लेक्चर अपना समाप्त करते हैं। जी जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी जी, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਫਲਸਫਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।